Let us not start with objective questions. I'll send the answers marked with the explanation. You can check. We might check some of the MCQs and we'll discuss. We'll discuss in detail the subjective questions along with how we transition from medieval India to modern India. Let's set a context of modern Indian history. All right. Before we discuss the questions. All right. So, what is so modern about modern India that we call it modern Indian history? What is so modern about it? As we see, the Mughal Empire was on decline, economy was in shatters, and there was, multiple invasions by Nadir Shah and then followed by Abdali. Then, and then, Mughals administration was in the weak position. Nobles were fighting. The regional kingdoms were, mushrooming. Then there were successor states, rebellious state. They were leaving the Mughal empire altogether and setting up their own regional kingdoms. And then there was influx of Europeans. They were coming and they were taking up India as a colony. So what was so modern about modern India that we call it modern Indian history? Hmm. What is so modern? My question is, what is this is important, okay? What is so modern about modern Indian history? Give me points. Thank you. Okay. 1 point Brajneet told me in the administration. है ना? Okay, administration of who? Administration of British Empire. Okay, ठीक है. हाँ, fair ना? Good point. और okay, influence of modern thoughts of Europeans. Okay, ठीक है. The influence of French Revolution, Russian Revolution. Okay. Influence of French Revolution and Russian Revolution. Okay, more. So, हाँ. अच्छा, okay. Education. Okay, rule of law. I'll take it from the influence of European thoughts, Renaissance. ठीक है. Very good. This is the point I wanted to listen to. In infrastructure, ना? Okay. Infrastructural changes like telegraph. ठीक है. Introduction of the railways. Very good. This is the point which is even, I wanted to highlight. See, जो ये points है ना, और बताओ, अच्छा एक point मुझे मिला जो मुझे अच्छा लगा काफी और काफी मीनिंगफुल है और जो कि एकदम एग्जैक्ट इट हिट्स द बुल्स आई. बोलते हैं ना कि अर्जुन से बोला गया कि मछली है, आपको क्या दिख रही है? तो सबने बताया ये दिख रहा है मछली, सिर्फ मुझे आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा था. तो वो ये बात है मछली की आंख देखना, ये पॉइंट है. रेनेसां थॉट, तो क्या मतलब एंशिएंट मिडिवल टाइम देयर वाज नो मॉडर्निटी इन थॉट्स. इन फैक्ट इंडिया वाज मच मोर एडवांस. एंशिएंट इंडिया की बात करें हम, इवन मॉडर्न इंडिया तो आते थे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लाइन हो चुका था. देयर वाज नो टॉक ऑफ एस्ट्रोनॉमी. सिर्फ सवाई राजा जय सिंह थे जो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन बना रहे थे. बट इफ वी सी इन थॉट्स, everything was in decline, na? Everything was in decline. Economy, political thoughts, everything in India was in decline. Influence tha, yes. The education and the effect of Renaissance was only, visible on the upper class. Upper class. Upper educated Indians who later on goes to become moderates, जो early nationalists थे जिनको बोलते हैं ना. We're entering, remember, we have finished medieval Indian history. We have finished medieval Indian history with fall of Vijayanagar and Bahmani kingdom. All right. And then during Vijayanagar kingdom only, there is a coming up of Portuguese. है ना? याद है ना? ये तो Portuguese arrival and why they came, why they fought, why they were victorious. ठीक है? उसके बाद
देन वी एंटर इनटू मुगल्स, ठीक है, फिर मुगल्स का डिक्लाइन देखते हैं, ठीक. Along with this question, I want you to know what is so modern about modern India that we call it modern Indian history. We said it's ancient, then we said it's medieval, then we say it's modern. So what is so modern, भैया, about modern India that we call it modern? कहाँ modern था? Indian Renaissance was we can say Indian Renaissance was a failure. Critical aspect. Yes, there were positive impacts, but Indian Renaissance was a failure. Then what was so modern about modern India? जो ब्रिटिशर्स की इंट्रोडक्शन थी, पॉलिसीज थी ना, उसी में हम ढूंढेंगे व्हाट वाज सो मॉडर्न अबाउट मॉडर्न इंडिया. यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन जो आया. कैसे? रेलवेज आया. रेलवे से देयर वाज ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद इट थॉट्स ऑफ इंडियन देमसेल्फ. रेनेसा वगैरह का तो चल रहा था, ठीक है, बट इट वाज ओनली influencing upper class strata, upper educated Indians, not the middle or lower. There was no, जैसे इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, there was no such thing. In fact, Britishers, when they came, they shattered Indian economy like anything. We have already had a glimpse of it. So yes, one point was the introduction of infrastructure such as railways, telegraphs, which facilitated, goods and services, and with it, it facilitated the movement of the early nationalists, because of which the Indians thought started traveling to nook and corner of the country, and so that people mingle and people shared, people understood what is going on in the country. ये rise of nationalism, ठीक है, all right, but then that's different. But जो administration of ये था ना, British Empire था, इसमें हम ये वाला point explain कर सकते हैं, justify कर सकते हैं कि क्यों what is so modern about modern India with respect to administration. जैसे जुडिशरी है ना, जुडिशियल चेंजेस या जो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जैसे अगर डुअल गवर्नमेंट की बात करें, पहले ऐसा तो कुछ नहीं था ना. बंगाल में डुअल गवर्नमेंट जब आई, दीवानी राइट्स, देन निजामत, हम पढ़ेंगे व्हाट इज डुअल गवर्नमेंट, कई बार कंफ्यूजन रहता है लोगों को. उसके बाद आप देखो कि पुलिस सिस्टम में भी देवर रिफॉर्म्स, है ना. Okay, the objectives were to fulfill their own interests, their own purposes in India, to extract maximum from India and then make it have a political subjugation as well, along with cultural and Christianity. One of the main important tasks of Portuguese and Spanish to come India was to spread Christianity. ठीक है. So yes, इसको explain करना. If there is a question, what is so modern about modern Indian history, modern India, that we call it modern Indian history, you should know all these points. ठीक है. अब let us move to this thing. What was going on in the world and why the Europeans came towards Southeast Asia or towards India. What was going on in the world? This is important to be understood before we reach completely and to make it a focus of Mughals and their decline, and then what were the factors. So let us start with the Constantinople. And ठीक है, Constantinople. बताओ. This is part of world history, but we have to take a little reference of it. ठीक है. There are two factors which push the other European powers to travel towards India and Southeast Asia. ठीक है. We will begin with Constantinople. Did you read about world history? कुछ पढ़ा है? थोड़ा बहुत रेफरेंस है. सेंट्रल एशिया पे ठीक है. डिस्ट्रप्शन ऑफ व्हाट? Land routes. Being very particular with the words. Good one. Yes. Continue, Minash. Yes. They started searching for the sea routes. Alternative, maybe sea route. Land route तो हो चुके थे, ठीक है, ऑक्यूपाई हो चुके थे. This was in control. But Constantinople but Sahil, try करो, Rishika, everybody. It's a discussion, two-way discussion class. ये एक
वन वे नहीं है. दिस इज कम राइट एंड डिस्कस. लेट्स अंडरस्टैंड हिस्ट्री थ्रू स्टोरीज. सॉरी, फिर से कम अगैन. राइट, राइट, राइट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. वे एकदम एनसीईआरटी के वर्डिंग्स है साहिल. वेरी गुड, आई एम प्राउड. राइट. वेरी गुड, वेरी गुड. लेट मी elaborate upon it. ठीक है. एंड ऑलवेज गो थ्रू द मैप. वर्ल्ड का मैप हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आई से इट्स इंटरलिंक्ड. I have been always establishing interlinkages among all the topics, and again, there will be interlinkages. World history, geography से connected है, geography, economy से connected है, economy, history से connected है. Let us see that. All right. So Constantinople. Here, there was an empire which was ruling. Which empire? There was an empire. हाँ, Byzantine Empire. ठीक है. और ये क्या था? This was a Roman Empire. ठीक है. ऑलराइट. सफेविद एम्पायर्स यहाँ पे उसका रोल नहीं है अभी. द कॉन्स्टेंटिनोपल वाज एट दैट टाइम रूल्ड बाय द बेजेंटाइन एम्पायर. इतना याद रखो. बेजेंटाइन एम्पायर वाज ओवरथ्रोन बाय द ऑटोमन एम्पायर्स. ठीक है. कॉन्स्टेंटिनोपल अभी सफेविड्स का कोई रोल नहीं है. सफेविड्स का हमने पिछली क्लास में रेफरेंस लिया था व्हेन वी सी द अरब्स एंड टर्क्स कमिंग टू मिडिवल इंडिया एंड forming the various empires. But for now, do not get confused. अभी इतना याद रखो कि Constantinople was ruled by at that time Byzantine Empire. It was a Roman Empire. और यहाँ पे क्या फॉलो होती थी? क्रिश्चियनिटी. अब वो बात अलग है कि कौन सा क्रिश्चियनिटी, कैथलिक, ऑर्थोडॉक्स, कौन सा. डू नॉट गो इनटू दैट. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. पढ़ोगे आप थोड़ा और क्लियर होगा. अभी थोड़ा सा रेफरेंस ले रही हूँ मैं सो दैट आई कैन करेक्ट इट मॉडर्न इंडिया एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. सो कॉन्स्टेंटिनोपल वाज रूल्ड बाय बेजेंटाइन एम्पायर. यहाँ पे किसका किसका इन्फ्लुएंस था? अब रोमन्स का था. उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं अभी रोल आएगा वेनिस का. वेनेटियन एम्पायर, वेनिस एंड जिनोवा उसमें बोलते हैं. ऐसा एक कंट्री था. ठीक है. तो कॉन्स्टेंटिनोपल पे क्या हुआ? देयर वाज सम wars which happened and Ottoman Empire came and they overthrew Byzantine Empire. They took control of Constantinople, जो आज इसको इस्तांबुल बोलते हैं, टर्की में है. ठीक है. सो Ottoman Empire कौन थे? They were Turks. ठीक है. Turkish. Alright. So what happened? अब ये देखो मैप बनाओ. ध्यान रखो. This is छोटा सा बनाना चाहिए था वैसे. This is empire, India, then connected with the Southeast Asia, Indonesia, Malay. ठीक है. उसके बाद आ जाओ, यहाँ से आ जाएगा. फिर ये साउथ अफ्रीका आ गया. ठीक है. यहाँ से हॉर्न ऑफ अफ्रीका. तो देखो थोड़ा सा आना चाहिए मैप, रफ ड्राइंग होनी चाहिए. उसके बाद इधर आ जाओ, नॉर्थ अमेरिका, इधर यूरोप. ठीक है. सेंट्रल एशिया, देन ईस्ट एशिया. ठीक है. सेंट्रल एशिया वहां हो गया. वेस्ट एशिया हो गया. यस. रशिया, चाइना, रशिया, चाइना. यहाँ से देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टेरिटरी. फिर ये नॉर्थ अमेरिका हो गया. ठीक है. साउथ अमेरिका हो गया. ठीक. इस तरीके से थोड़ा सा आपको रफ ड्राइंग आनी चाहिए. अब यहाँ देखो, यहाँ पे है कायरो. ठीक है. और यहीं पे देखो आप, यहाँ पे है आपका मक्का, मदीना. ठीक है. उसके बाद इधर ही आ जाओ, फिर इजराइल, पैलेस्टाइन, टर्की, इस्तांबुल. इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, स्पेन है. स्पेन याद रखना, स्पेन इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर. पोर्चुगीज इंपॉर्टेंट प्लेयर. उसके बाद यहीं पे रोम है, इटली है. ठीक है. रोमन एम्पायर, वेनिस. ठीक है. उसके बाद आप इधर आ जाओ, फिर स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, रोमन्स हो गए. उससे पहले कौन थे? वेनिस एंड जिनोवा. दीज वर टू इम्पोर्टेंट प्लेयर्स. तो हो क्या रहा था, ये देखो आप ये जो ये रूट था ना, दिस रूट. ठीक है. मेडिटेरियन कहाँ है? यहाँ पे बताओ, समवेयर हियर. ठीक है. उसके बाद ये क्या है? अटलांटिक. ठीक है. दिस एरिया इज अटलांटिक, जिसको ट्रांस अटलांटिक बोलते हैं. ये वाला, सॉरी, ये वाला एरिया
इसको बोलते हैं ट्रांस अटलांटिक, ठीक है. अभी I'll connect you with the slave trade as well. Transatlantic slave trade also had a huge bearing on the entire world history. तो ये इवेंट्स आपको कनेक्ट करके रखना है दिमाग में, ठीक. सो दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, और इसको आप रख लो, दिस इज योर यूरोपियंस, ठीक है. ऑलराइट, स्पेन एंड पोर्चुगल याद रखो, रोम, वेनिस, जिनोवा, एंड देन एनीथिंग एल्स. हाँ, देन दिस इज द कायरो, इजिप्शियन, ठीक है. यहाँ पे भी, और पूरा ये अफ्रीकन कोस्ट है, ठीक है. ये पूरा अफ्रीकन कोस्ट है. अब इस मैप को ध्यान में रखते हुए एंड देन देयर इज अ रूट, ठीक है. अब यहाँ से रूट क्या होगा, मेडिटेरियन रूट, जिसको टुवर्ड्स मेडिटेरियन रूट बोलते हैं. ये क्या हो गया आपका, दिस पार्ट, लेट्स से दिस इज यूरोप, ठीक है. सो दिस पार्ट व्हिच इज टुवर्ड्स दिस विल बी कॉल्ड एज ईस्टर्न यूरोप, है ना. एंड टुवर्ड्स दिस विल बी वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप. अब वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप, so first thing remember that route, the trade route towards India and Southeast Asia was having many branches, so one branch आप समझ लो कि वेस्ट यूरोप से लेकर के एशिया तक ये कोई और कंट्रोल कर रहा था, ठीक है. और उसके बाद वेस्ट यूरोप से लेकर के एशिया तक ये भी कोई और कंट्रोल कर रहे थे, डिफरेंट प्लेयर्स थे. Important players at that time was Venice, people from Venice and Genoa, ठीक है. But then what happened, जब Ottoman Empire ने कॉन्स्टेंटिनोपल को ओवरथ्रो कर दिया, what happened, these people, जैसे रीजन उन्होंने सही बताया कि in order to, क्योंकि विंटर्स के लिए उनको क्या करना था, मीट कट करना था ड्यूरिंग समर्स एक्सेट्रा, दे हैड टू प्रिजर्व द मीट, तो दे नीडेड मोर स्पाइसेस. अब इन्होंने, और दूसरी बात है कि बहुत ही थ्राइविंग ट्रेड था, दे वर अर्निंग मिलियंस एंड मिलियंस, ठीक है. एंड दे वर, सबको चाहिए था कि भाई वो अर्निंग सबको चाहिए, तो दे ऑल स्टार्टेड लुकिंग फॉर दी रूट्स. लेकिन जब कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑटोमन एम्पायर्स ने कंट्रोल कर लिया, अरब जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, अदर यूरोपियन पावर्स के लिए ब्लॉक कर दिया. इवन द वेनिस वाले थे और जिनो वाले थे, उनके लिए भी ब्लॉक कर दिया. तो इंपॉर्टेंट दो प्लेयर उभर के आए, स्पेन एंड पोर्चुगल. दे स्टार्टेड फाइंडिंग द रूट्स. उन्होंने क्या किया, वॉयजेस भेजना शुरू किए, ठीक है. एंड वी नो अबाउट कोलंबस एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स. तो अब पोर्चुगल एंड स्पेन को रूट चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, ये लैंड रूट्स को इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको बाईपास करते हैं, और यहाँ से उन्होंने ढूंढना शुरू किया, केप ऑफ गुड से होते हुए ये रास्ता ढूंढने की कोशिश की, ठीक है. सो नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस. यहाँ पे ये प्रूव होता है कि भाई उनको सामान चाहिए था, पेपर वगैरह चाहिए था, एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट goods which they wanted to trade from India and Southeast Asia, because they have heard the rich wealth of India and South Asian countries, including Indonesia and Sumatra and everywhere else. So they said, हमें भी चाहिए भाई इसमें share. So they started searching for the alternate route, and that is how the Turkish, control of the Ottoman Empire pushed them to find alternate route through Cape of Good Hope, that is Africa, and they reached to India, and that is a different story altogether. ठीक है, कैसे आए, क्या आए, पहले कहाँ पे सेट हुए पोर्चुगल. इससे पहले एक और चीज ये देखने की जरूरत है, बिफोर वी टेक अप एज वेल, वो भी सारी चीजें हम देखेंगे. एक चीज ये देखो, एक ट्रायंगुलर ट्रेड है. ट्रायंगुलर ट्रेड पता है क्या थी? वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, राइट, राइट, वेरी गुड. तो एक बार चलो इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि हाउ दिस अफ्रीकन स्लेव ट्रेड, दिस ट्रायंगुलर ट्रेड फ्यूल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन that forced the European to think, capture colonies where they could dump their manufactured products.
and get, each industrial revolution है, they'll have more and more products produced. तो ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से क्या सिर्फ उस फायदा तो होगा नहीं. What they will extra need, they will need market to sell those products, right? That is why colonization started with a added reason. Many other reasons are there for the ritual, for the pepper, for the salt, for the spices. But what else? They needed markets to sell their products. वो भी तो चाहिए ना. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बेकार हो जाएगा. अपने लोग थोड़ी ना फ्यूल करेंगे इकोनॉमी को. कंज्यूमर खरीद के, कंज्यूमर्स कितने कंज्यूमर, छोटी सी उनकी पॉपुलेशन थी, ठीक है. सो दे नीडेड न्यू मार्केट्स, न्यू पीपल टू बाय, एंड दैट इज व्हाई दे केम, दे इंटरफेयर्ड एंड दे चेंज इन द सोसाइटी एंड कल्चर एज वेल. मैकडोनल्डाइजेशन सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा आप लोगों ने ना. मैकडोनल्डाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ दी, कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है जिससे बताया जाता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है, व्हेन वी consume a lot of Western culture, we'll become like them. So we'll consume whatever they wear, whatever they eat, however they think. और हम कैसे वेस्टर्न कल्चर को कंज्यूम करते हैं? थ्रू मूवीज. ठीक है, थ्रू मूवीज. आप देखो वहाँ जैसे वो कपड़े पहनते हैं, जैसे वो बोलते हैं, वी लाइक टू इमिटेट देम. अगर इमिटेट करना है तो वहाँ के हमें कपड़े भी चाहिए, वहाँ के कपड़े चाहिए, वहाँ की लैंग्वेज चाहिए. एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू कल्चरल डोमिनेशन होगा, तभी तो क्रिश्चियनिटी बढ़ेगी, तभी तो कन्वर्जन आए होंगे. ठीक है. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. नाउ स्लेव ट्रेड, थोड़ा सा ये जान लो. ठीक है. सो स्लेव ट्रेड क्या करते थे? ये 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 रूट था स्लेव ट्रेड का. ठीक है. क्या था? यहाँ से यूरोपियन शिप्स खाली निकलती थी. स्लेव ट्रेड बोलते थे, खाली नहीं, स्लेव शिप्स बोलते थे. स्लेव शिप्स. ठीक. यहाँ से यूरोप से स्लेव शिप्स निकलती थी, क्या लेकर के? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेकर के. मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेके यूरोप से आती थी अफ्रीकन कोस्ट की तरफ. ठीक है. यहाँ से यहाँ पे क्या थी इनके लिए? नीग्रोज, स्लेव्स. ठीक है. तो ये मैन्युफैक्चर्ड गुड यहाँ से देते थे, स्लेव्स को यहाँ पे पिक करते थे. अब ये पूरा रूट ये ट्रैवल करते थे, इसको बोलते हैं ट्रांस अटलांटिक रूट. ठीक है. तो ट्रांस अटलांटिक रूट से अगर आप देखोगे तो इनकी बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारे जो कॉलोनीज थी इनके ना उस टाइम बन गई थी. तो यहाँ से क्या करते थे, जो माइंड प्रोडक्ट्स थे, माइंड प्रोडक्ट्स, गोल्ड, आइवरी एक्सेट्रा और बाकी चीजें भी, यहाँ से ये क्या करते थे, स्लेव्स को ले जाते थे. स्लेव्स को बेचते हुए, वो प्रोडक्ट्स को लेते हुए, जो उनके कॉलोनियल प्रोडक्ट्स थे, या कॉलोनी प्लांटेशन गुड्स थे, नॉट कॉलोनियल प्रोडक्ट्स, प्लांटेशन गुड्स या माइंड गुड्स जैसे गोल्ड, आइवरी या अदर प्रोडक्ट्स, वो यहाँ से उठाते थे, फिर यहाँ पे ले जाकर इसको बेचते थे और खूब पैसा कमाते थे. कुछ नहीं, मैन्युफैक्चर खुद का ही मैन्युफैक्चर किया हुआ गुड्स लेकर के आके वहां से कुछ और उठा के कुछ बेच करके वहां से कुछ और लेकर के ले जाके अपने वापस वहां बेच रहे हैं. तो शिप भर के आई और शिप भर के गई और खूब सारा पैसा इनके लिए बनता था. दिस लेड टू दिस, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर ट्रेड. एवरीथिंग इन हिस्ट्री इज कनेक्टेड, वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल. ट्रायंगुलर ट्रेड बोलते हैं. दैट वाज, जिसको बोलते हैं स्लेव ट्रेड. इसमें कॉम्पिटिशन. This slave trade is said to fuel the industrial revolution of which century? 16th, 17th century. ठीक है. अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फ्यूल हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए, जैसा मैंने पहले ही बता दिया, they will need markets. In order to find out these markets, also they needed new colonies, and so colonialism. What is the difference between colonialism and imperialism? ठीक है. ठीक है. more reflection. कहते हैं जब ये इंपीरियल पावर था तो क्या था, कॉलोनियल पावर था तो क्या था. कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये जब पहली क्लास हुई थी ना ओरिएंटेशन की, तो मैं कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म में डिफरेंस बताया था. ठीक है. ओके.
In terms of, और बताओ, in terms of economy, political, cultural subjugation. In imperialism, indirect control with what? In every sphere. Except, this is the point which I want you guys to understand and elaborate upon. The difference in terms of political, cultural, economic subjugation. जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो क्या थी? मेरा कंपनी, ठीक है, जिसको क्या इंटरेस्ट था? प्रॉफिट कमाना, ठीक है, एंड दे वर नॉट इंटरफेयरिंग इन दी पॉलिटिकल स्फेयर, ठीक है। तो उसके बाद उनको क्या लगा कि यार प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें अदर स्फेयर्स में भी सब्जुगेट करना पड़ेगा इंडियंस, ठीक है। तो दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग विद दी सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एज वेल, ठीक है। अभी तो इकोनॉमी से उनको मतलब था, तो बाद में क्या हुआ, उनको अदर स्फेयर से भी दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग। तब कहाँ वो ट्रैवल कर रहे हैं? फ्रॉम कॉलोनियल टू इंपीरियल, ठीक है। तो जब थॉट्स, कल्चर एंड पॉलिटिकल स्फेयर में भी स्टार्ट हो जाए इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस, तो द पावर बिकम्स इंपीरियल पावर, बोलते हैं ना इंपीरियल, ठीक है। अंडरस्टूड? कुछ समझ में आ रहा है? तो कॉलोनिज्म टू इंपीरियलिज्म, ये मैंने पहली क्लास में भी समझाया था, ठीक है। इंपीरियल कब बोलते हैं? इंपीरियल है ये कॉलोनिज्म। तो कॉलोनियल पावर आया, सिर्फ उन्होंने क्या किया भाई, इकोनॉमिक स्फेयर में हमें मतलब है बस। उसके बाद क्या, वो पॉलिटिकल, देन स्टार्टेड चेंजिंग जुडिशरी, पॉलिटिकल, एंड देन योर सोशियोलॉजी भी कनेक्टेड और मैकडोनलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब थोड़ा चीजें हैं, वर्ड्स हैं, इनको समझ के रखो जब पढ़ते हो ना हिस्ट्री की बुक अपनी, तो इनको थोड़ा समझो, ठीक है। नाउ अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पहुंच चुके हैं। अब इंडिया में क्या हो रहा है? यहाँ पे मॉडर्न इंडिया में क्या हो रहा है? मुगल्स पे आ जाओ, ठीक है। मुगल्स इज आर इन डिक्लाइन सबसे पहले कहाँ विजिबल होना स्टार्ट होता है? was the ruler of Mughal Empire when Nadir Shah invaded? बताओ। मोहम्मद शाह के टाइम कौन था? नहीं, एक नादिर शाह हुआ था, एक अहमद शाह अब्दालिया था। तो नादिर शाह के टाइम कौन था? अहमद शाह के टाइम कौन था? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे मुझे? मोहम्मद शाह सही है ना? कंफ्यूज क्यों रहे हो? उनके कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? Not able to see the comments of online students. Kamini is in online. Megha, Kishre, I'm not able to interact with them. ये स्क्रीन पे मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं बच्चों के। ये कनेक्टेड नहीं है क्या? अभी कनेक्ट हुआ क्या? शायद से इतने सारे बच्चों के आंसर्स आए, देखने में भूल जाती हूँ। पहले की थोड़ा सेटिंग चेंज हो गया है गेस, क्या इसमें? अच्छा, कुछ सेटिंग्स में ना पहले से चेंज, थोड़ा सा चेंज है। पहले स्टूडेंट्स भी दिखते थे, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, और उसके बाद फिर कमेंट्स दिखता था। आज अभी दिख रहा है थोड़ा बहुत, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है। सेटिंग्स ना उनसे करवा लिया करो आप। मिस हो गया सारा। पिछले सायन, hello Kamini, I have your copy. We'll discuss the answers. All right, great that you attended the test. And we are having students who joined late. Let me give you an overview what we are doing.
we are establishing some context and understanding of modern Indian history, how it started. The rest you can read NCERT. I just want to have some connections, some interlinkages over the various topics and how modern India started. That's what I can do in my limited, time in the mentoring sessions or else classes में तो बहुत सारा time होता है, पूरा modern India पढ़ा सकते हैं. लेकिन a little of understanding I want you to have so that you can, while you're reading again your NCERT, थोड़ा ज़्यादा interesting हो जाएगा, ठीक है, समझ में ज़्यादा आएगा अच्छे से. So that's what we are doing. We understood what is so modern about modern India. जो थोड़ा सा मिस हो गया, you can watch from the recorded session. You can take the recorded sessions. ठीक है. Alright. So चलो continue करते हैं. So मुगल्स, yeah. So मुगल्स के साथ क्या हो रहा था? मैं कुछ भूल तो नहीं गई बताने के लिए. देखो कुछ बचा है बीच में. I think yes. ठीक है, फाइन, सही है. अब बताओ. सो मुगल्स, पोर्चुगीज सबसे पहले आ चुके थे, वो विजयनगर एम्पायर के टाइम ही आ चुके थे, ठीक है. उसके बाद सबसे पहले वी सी द मेंशन ऑफ इंग्लिश व्हेन, इन विच मुगल एम्पायर्स कोर्ट. वेरी गुड. जहांगीर कौन आया था? विलियम हॉकिंस इज सर थॉमस रो. हॉकिंस, अग्रीड. सबको याद आ रहा है? एनसीईआरटी में पेज नंबर तुम लोगों को बताती हूँ, पेज नंबर बताती हूँ, किताब लेके आई हूँ. पेज नंबर, एंगुलर पेज, पेन, हाँ, पेज नंबर 38. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बुक इज रिटन, क्लियरली रिटन है. बताओ व्हाट इज द फर्स्ट फैक्ट्री व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सूरत? पक्का फर्स्ट फैक्ट्री थी. ये वाला क्वेश्चन हर क्लास में बच्चा, मैम पहली फैक्ट्री कौन थी इंग्लिश की? मैम पहली फैक्ट्री कौन सी थी? एनसीईआरटी अगर ध्यान से पढ़ो पेज नंबर 38, तो लिखा हुआ है कि इन 1608 सबसे पहले थोड़ा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री समझो, ठीक है. सबसे पहले एक 1600 में एक मेजर इवेंट है. 1600 में कब हुआ? ठीक है, 1599 से पकड़ो पहले. 1519 नहीं, उससे पहले ये हम समझ लेना कि चल क्या रहा है इंडिया में, ठीक है. थोड़ा सा ये समझो पहले. हाँ बताओ, अब इंडिया में चल क्या रहा है? अंग्रेजों को बाद में पकड़ते हैं, पहले इंडिया में बताओ चल क्या रहा है. बताओ. अभी पोर्चुगीज आ चुके थे, विजयनगर एम्पायर फॉल हो चुका है, खत्म हो चुका है, मुगल्स आर इन डिक्लाइन, औरंगजेब के टाइम विजुअल डिक्लाइन दिखता है. लेकिन आप लोगों को आप ये बताओ, औरंगजेब ने अंग्रेजों को कभी हराया था? औरंगजेब की अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी? Was there any skirmish between Aurangzeb and English? साहिल, चांदनी, मीनाक्षी, 3 लोग आंसर आ गया. लोकेश. औरंगजेब ने अंग्रेजों को मार मार के भगाया था, दौड़ा दौड़ा के मारा था. भाग गए थे, छुप गए थे, जाकर के रह रहे थे कोने में. फिर आए बोले ऐसा सर गलती हो गई, हम ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज हमें सिर्फ ट्रेड दे. इतने चालू थे अंग्रेज, हमेशा ऐसा करते थे. लड़ते थे, जब जीत जाते थे तो ओवर पावर करते थे, बाहर जाते थे सर गलती हो गया. फिर थोड़ा सा कंसेशन लेते थे, थोड़ा थोड़ा विद लिटिल बिट ऑफ कंसेशन, एंड देन दे यूज्ड टू ओवर पावर. दे डिड थ्रू आउट हिस्ट्री, दे डिड इट टिल इवन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 तक भी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इवन 1942 तक चल रहा था यही सेम टैक्टिक्स दे अप्लाइड. और अकबर ने इतना मारा था अंग्रेजों को, क्या हुआ? छोटी छोटी जगह, ठीक है बोले ट्रेडर्स की तरह है, ट्रेड करो 2-4 जगह. फिर क्या किया, गए 2-4-5 जगह इंपॉर्टेंट दे टुक ओवर इंग्लिश. एंड देन अंग्रेज गुस्साया, इतना मारा था इनको भगा के जाके कोने में छुपे हुए थे. फिर आए, फिर सॉरी बोले, फिर थोड़ा कंसेशंस लेते हुए दे ओवर पावर्ड अगेन. सो ये सब याद रखो ना, लाइन स्टेटमेंट दे देगा. there was a skirmish between Aurangzeb and English where Aurangzeb defeated the English. कहते ना इंग्लिश was so powerful, ये है वो है, naval power थे, बहुत एडवांस आर्मी थी इनकी, काफी अच्छी लीडरशिप थी. सबको याद रहता है. फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में सब बच्चे लिखते हैं और गलत लिखते हैं. मैं इसको गलत मानती हूँ, इस पॉइंट को,
इवन बहुत सारी गाइड, जिसको गाइड बुक्स बोलते हैं ना, स्पेक्ट्रम में, अदर बुक्स में भी ये लिखा हुआ है, द सुपीरियर नेवल। अगर सुपीरियर होते तो औरंगजेब ने कैसे मारा होता, इनको मार मार के भगाया होता, कहाँ मार पाता। जहांगीर के टाइम ही आ चुके थे औरंगजेब। उसके बाद व्हेन द मुगल्स, ठीक है, लेटर मुगल्स एकदम बाद में, जब मोहम्मद शाह वगैरह, बहुत फारूक शियार के टाइम, फारूक शियार ठीक था, फारूक शियार वाज नॉट बैड। फारूक शियार के टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गए थे। इफ यू कैन रिमेम्बर, देयर वाज सक्सेसर स्टेट एंड रिबेलियस स्टेट, ठीक है। चलो ओके, अभी पढ़ेंगे हम अनदर फैक्टर, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर समझ में आ गया, बाकी सब फैक्ट है in modern history. That's what I believe. Decline of Mughal Empire and various developments and interlinkages between the events, coming up of European powers, the reasons, the world events and connectivity, and then coming up of European powers in India, and the intermingled with the, connected with the ongoing event of fall of Mughal Empire, connected with the various invasions, important invasions. You'll understand entire modern history. बाद में फिर वही हो रहा है, अर्ली नेशनलिस्ट आ रहा है, भगाने की कोशिश कर रहे हैं दिस पार्ट, देन सिर्फ इवेंट हो रहा है। इवेंट क्या हो रहा है? अर्ली नेशनलिज्म हो रहा है, मॉडरेट्स आ रहे हैं, फिर बता रहे हैं, वो पहले तो सबको झकझोड़ रहे हैं। किसी सोते हुए इंसान को सबसे पहले जगाया जाता है ना, कि सबसे पहले सोते इंसान को ज्ञान देने लगते हैं, ज्ञान दे तो नहीं है ना, सबसे पहले सोते इंसान को जगाया जाता है, मानिक छीटे मारे जाते हैं, होश में लाया जाता है, जग जा मेरे बच्चे जग जा, ठीक है। ये तो नहीं कि सोता हुआ सबसे पहले ज्ञान देना शुरू किए, नहीं होता ना। तो मॉडरेट झकझोड़ रहे थे इंडियंस को थ्रू देयर ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो ड्रेन थियरी थी दादा भाई नारजी की। मॉडरेट्स, अरे नेशनलिस्ट का क्रिज्म आता है, बोलते हैं कि देयर वीकनेसेस, फलाना ढमाका। सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इंटरवेंशन किया जाता है। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग है, ठीक है। आई कैन नॉट इक्वेट यू विद हर, I cannot equate your preparation level with her. I need separate intervention. ठीक है, I have a distinct level of intervention at different level. So early nationalists का काम सबसे पहले यही था, when this coincided with the introduction of telegraph and railways. So there was a movement and they started, spreading the thoughts, the understanding. भाई तुम लुट रहे हो, पहले तो ये तो समझो। पहले तो लगता था अंग्रेज सही है, सही कर रहे हैं हमारे साथ, because there was lack of confidence, years of this and yes, जब मुगल्स they came, मुगल्स फिर उन्होंने क्या किया, obviously there were many instances of, ऐसा नहीं था कि मुगल्स followed Islam, that is why there was so much destruction of the temples. Earlier also it was happening. Even Marathas कहा जाता है, if you know, मैं हिस्ट्री पढ़ाने लगती हूँ, थोड़ा इधर उधर कभी इधर उधर भाग जाती, कहती है वो क्या, एक जोक है ना कि माफ करिएगा कभी इधर उधर निकल जाता हूँ मैं तो हिस्ट्री पढ़ाते हो, माफ करिएगा इधर उधर निकल जाती हूँ। इतनी सारी चीजें इवेंट्स कनेक्टेड होती है ना, तो माफ करिएगा इधर उधर निकल जाती हूँ मैं, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो अगर आप लोग याद करो, पीपल से दैट देयर वाज डिस्ट्रक्शन ऑफ many temples, many architecture of Hindu, Jains, Buddhism. This was happening since ancient. Even there was destruction of Hindu temples by Jains and then followers of the emperors who patronized Jainism, Buddhism. There was destruction of the Jainism, Buddhism temples by the patronizers of Hinduism. And the same thing happened, अगर आप लोग याद करो, मराठास, टीपू सुल्तान ने एक शारदा मंदिर, काली मंदिर था, उन्होंने उसके वापस उन्होंने रिस्टोर करने के लिए काफी ज्यादा पैसे दिए थे, ठीक है। एंड श्रृंगेरी नामपा टेम्पल, एंड इट वाज डिस्ट्रक्टेड बाय हु? मराठा आर्मी, मराठा हॉर्स राइडर्स। और मराठास कौन थे? प्योर हिंदू थे, बाद में पेशवा तो ब्राह्मण्स थे, ठीक है। So when people say na, when it was just a policy of divide and rule, do not get, being a student of history, always understand this. Never ever have this perception, colored perception written in, कहते हैं कि Orientalist समझ लो, या जो British, हमारी mostly history has written by who? हमारा अगर देख लो ठीक हिस्टोरियन, मुझे लगता है कोई सही राइटर है ही नहीं हिस्ट्री का। मैं ही बुक लिखूंगी, ठीक है, एक दिन सही हिस्ट्री का। तो अब देखो, कोई बुक नहीं है, मैंने उपिंदर सिंह पढ़ी है, सब पढ़ी है, इतना ज्यादा कलर्ड परसेप्शन है, इतना ज्यादा इवेंट्स को अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है, that I feel history has not been presented well to the students. So if you see that Mughal Empire, it was declining, then there was successor state.
all the successor states are my favorite. The wazirs, the founder of all those successor states are one of my favorites. All of them ruled so well. And one of them, बाद का अगर हम बात करें कि सफदरजंग जो नवाब थे बंगाल के, he is my favorite person. And all of them were personal but quite disciplined, very disciplined, very disciplined, and personal morality बहुत high थी इनकी. Safdarjung never took another wife. He was very loyal to just one woman. He was one woman. Safdarjung Hospital, Safdarjung Road ऐसी नहीं है. Reason है उसका. And even अगर तुम देखो हैदराबाद का फाउंडर, अवध के फाउंडर, बंगाल, चलो ठीक है, all of them were very very personal, high in personal morality and self discipline. Very disciplined. They did not take wine. They did not indulge in luxury. They did not indulge in unnecessary pomp and show. Who was the ruler who tried to, जो राजपूत जो रूलर थे, they were having high pomp and show and huge dowry giving to the daughters while they were married off their daughters. Who was the ruler who tried to regulate this pomp and show and कि भाई नहीं, pomp and show नहीं चलेगा, एकदम हल्की फुल्की शादी करो. एनसीईआरटी में लिखा है. हाँ, जय सिंह. बात सही पहुंचे है, देख लो, सही पहुंच रहे हो. जय सिंह मुगल एम्परर. मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्या, भूल गए शायद. सवाई जय सिंह ने समझाना शुरू किया था सबको कि जो है कोई मुगल एम्परर भी था जहां तक मुझे याद आ रहा है. मैं कभी कभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है मेरे दिमाग में भी. ऑलराइट, I'll remember something. Yes, सवाई जय सिंह ने समझाना शुरू किया था सबको. वेरी गुड पॉइंट. सवाई जय सिंह लेटर जो राजपूताना रूलर में से थे, एक थे, द वन हु स्टार्टेड मेकिंग दिस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज. कहाँ कितने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो सवाई जय सिंह ने बनाए हैं? कहाँ पे? उज्जैन और दिल्ली. भूल गए. ठीक है, पीटी में आ सकता है ना. सो यू गाइस शुड नोटिस ऑल दिस थिंग. ठीक है, तो यस, तो सवाई जय सिंह, बट देयर वाज सम मुगल रूलर एज वेल हु tried to say something. So well, I was on the point that there was a decline and then there was later rulers, then there was destruction of the temple. ये मैं कहीं से कनेक्ट कर रही थी, वो वहां से मैं, माफ करिएगा, भटक गई. कभी कभी भटक जाते हैं हम. ठीक है, so let us come back to the decline of Mughal Empire and then European powers and connect करके then we'll finish our discussion. You might have developed by the end of this discussion a proper understanding of beginning of modern Indian history and various events interconnected. And then when you again go back to your NCERT and read it and revise it, you'll have better grip over it. तो मुझे ये सब थोड़े सा गाइड बुक जो है ना, उतना ट्रस्ट नहीं होता. I have huge trust on NCERTs. If you can mug it up, if you can revise it up, if you can read well. So I will show you modern Indian history from 2013 to 2024, the questions which have been asked in UPSC. So you'll understand most of the questions can be solved by your NCERTs. A little bit of understanding maybe can be taken from the guidebook, whatever book there are in the market. You can take that selective reading. But your NCERT, आप medieval history को एक read करो ना, after 9-10 chapters you will feel suffocated because there's so much bombardment of information. Even if you're reading it like a storybook, even if you're enjoying reading it, if you're loving reading it, still you'll feel यार बहुत हो गया, too much. So NCERT पढ़ के बहुत हो गया, तो why do I need to read anything else? There's a very famous teacher, Sahil, has studied from there, and I have worked years and years there. I've earned a lot of money also from there. I have had a very luxurious life, but मेरे आइडियल्स मैच नहीं करते थे बिल्कुल वहाँ से, तो इसीलिए हमने कहा नमस्ते, हस्ता लविस्ता, और चलते हैं, कुछ और करते हैं जीवन में. So मैंने उनका शॉर्ट देख रही थी, मुझे इतना गुस्सा लगा, इतना बुरा लगा, एंड आई फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स. उन्होंने बोला कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी वो क्या कहते हैं, वो है एक उनका शॉर्ट्स है. आजकल खूब शॉर्ट्स जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट में, प्रेशर बढ़ गया है. तो एक शॉर्ट्स आया, आर द एनसीईआरटीज इनफ फॉर हिस्ट्री बुक्स, फॉर यूपीएससी क्वेश्चंस, टू टैकल हिस्ट्री क्वेश्चन. उन्होंने बोला नो,
मैंने कहा ठीक है, यस ट्रू, सही है। तो व्हाट एल्स टू रीड? तो पूछोगे ना, इफ यू रीड मी मैम, आर द एनसीईआरटीज इनफ for tackling UPSC questions? You'll ask me. I'll say no, they're not. They're not completely. If there are 10 questions, let's say, you'll able to solve maybe 6 to 7 questions from NCERT books. They'll say, ma'am, what about 3 to 4 questions? What are the sources? I'll say, revise your NCERT as well. Depend on these 6 to 7 questions. Mark it well and go. Then get over with it. Okay? Because you need only 50 to 60% marks to clear prelims. All right. Then, nahi ma'am, I want to read more. I will never ever suggest to read Upinder Singh. Have you seen Upinder Singh? This much thick book, Upinder Singh. This much thick book, almost 600 pages approx. Upinder Singh, who is Upinder Singh? Upinder Singh is the daughter of late Manmohan Singh ji, and she's an historian. She has worked in very prestigious universities, and she has written a book on ancient and early medieval. So ancient and early medieval only. For ancient and early medieval, for UPSC aspirant, is it advisable to read 600 pages for 3-4 questions? No, it's not. So what is solution? You stick to NCERTs, you mug it well, you understand it well. So whatever question comes from NCERT, you're able to comfortably solve them and you are getting through. That is the purpose ना, getting through, not to do PhD. PhD जो करते हैं वो PhD करते रह जाते हैं. That is a different goal altogether. Clearing UPSC needs mastery over the content which is there in your hand, which can be completed. What can be completed? NCERT can be completed. NCERT is plethora of information. If at all I'll suggest you to read something, I'll suggest you other books like IGNOU का book बहुत अच्छा है, ठीक है, NIOS की book बहुत अच्छी है. That's it. I'll never ever recommend you to read Upinder Singh this thick book. That has been recommended by that faculty with due respect. So that is the misguidance going on in the market. That I don't want you to be misguided. Stick to NCERT, read it, revise it well, and you're through. You're through. Anything else? अगर मान लो पेपर बहुत टफ आ गया हिस्ट्री का, सॉल्व भी नहीं हो रहा, इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनीबॉडी. लेट्स से तुमने भूपिंदर सिंह पढ़ भी ली, 10 से 10 क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया तुमने, ठीक है, फायदा क्या हुआ? व्हाट अबाउट अदर एरियाज? तुम हिस्ट्री करते रह जाओगे तो इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी कौन करेगा? 10 क्वेश्चन सिलेक्शन हो जाता है क्या? तो अगेन माफ करिएगा, कभी कभी इधर उधर भटक जाती हूँ मैं. तो क्या कहने का मतलब, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, ये आपके मेजर पोर्शन है कोर सब्जेक्ट के, ठीक है. आपने इनकी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, ठीक है. एंड फॉर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट इकोलॉजी तो रह गया, ठीक है. आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, 4-5 एरियाज है विच यू हैव टू सप्लीमेंट विद contemporary affairs. I call it contemporary affairs, not current affairs. Contemporary affairs 1.5 साल का करंट अफेयर्स थोड़ी ना होता है. यूपी आस्क करंट अफेयर्स फ्रॉम इवन 1 साल बियॉन्ड भी पूछता है. तो आई कॉल इट contemporary affairs, not current affairs. We call it at Triumph IAS, at IAS school, contemporary affairs. इसको आप सप्लीमेंट कर लो whichever book, whichever monthly magazine. I am least bothered and I do not have any suggestions. Anyone, all of them are competing well. So supplement it with these and solve it with PYQs. सॉल्व कर लिया, ये मैंने पहली बात बोला ओरिएंटेशन सेशन में, आज भी बोल रही हूँ. प्री क्लियर करके आओगे, लिख के आओगे ना, तो विल हैव डिस्कशन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कशन. आई विल प्रूव इट व्हाई दिस वर्क. इट विल वर्क, ट्रस्ट मी. तो आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चंस. मान लो हिस्ट्री के इस बार कितने आए थे? पीटी में 10 क्वेश्चन आए थे रफली, राइट? हैव यू सीन द पेपर? प्रीलिम्स की बात करें हम तब, प्रीलिम्स की, ठीक है, देखा है 24 का पेपर, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री. ओनली हार्डली 5 to 6 कुड बी सॉल्व फ्रॉम एनसीईआरटीज. हार्डली, सच में हार्डली 4-5 क्वेश्चन के हवा ही नहीं लग रहे थे. मत लगे, कोई बात नहीं, मेंस में आ जाते हैं. 6 to 7 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री. हिस्ट्री इंक्लूड्स पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री, आई मीन, ठीक है. 6 to 7 क्वेश्चन आए थे, इसमें से कंफर्टेबली 4-5 क्वेश्चन कुड बी सॉल्व फ्रॉम एनसीईआरटी. विन विन सिचुएशन नहीं है. लेट अब उपिंदर सिंह पढ़ रहे हो, उपिंदर सिंह पढ़ना तो
वो नहीं है ना, महारत नहीं है, या बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई चीज पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई चीज को रिपीट करके दिमाग में रखना बड़ी बात है। समथिंग यू रेड and then you're not revising, you're not getting time to repeat it. What is the significance of your first attempt, first effort? That is first reading. Lost. You have wasted your 20 days. उपिंदर सिंह पढ़ने पढ़ने सिर्फ पढ़ने पढ़ने 20 से 25 दिन लगेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी की तरह, सिर्फ और सिर्फ 25 दिन. Trust me. When for the first time in my life I read NCERT medieval history, it took me 20 days to complete it. When I was a student, naive, बिल्कुल. It took me 20 days. And that too for a person who had a natural flair for history, loved history. Imagine a student who do not love history, who do not like history, and who never have got a good faculty or teacher to tell them essence of history. Will they be able to read medieval history being a naive? Complete 20 days में नहीं होगा, 30 days में लग जाएगा medieval history complete करने में, book ही book सिर्फ. Then उपिंदर सिंह, imagine 30-40 days लग जाएंगे खत्म करने में. इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक, ग्रीन कलर की. So this is being advised. So as I said, तो win-win situation है. उपिंदर सिंह पढ़ लिया आपने, और सिर्फ एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल हिस्ट्री कवर्ड है उसमें, मिडिवल मॉडर्न भी कवर नहीं है. So 30 days for a book with no revision, I wasted my 30 days of life. Wasted, completely eliminated. मैं बोल दूं मुझे 30 दिन अपने उधार दे दो, मुझे जीना है 30 दिन, कभी नहीं दोगे, कभी नहीं दोगे. कोई भी बोल दे कभी नहीं दोगे, बोलो ऐसा है तुम भी 30 दिन जी सकते हो, मैं भी 30 दिन जी सकती हूँ, तुम अपने 30 दिन मुझे दे दो, तुम चले जाओ, आज 30 दिन जाना ही है, कभी नहीं दोगे, बोलो मुझे 30 दिन जी जाना है. ये 30 दिन आपने बर्बाद कर दिए ऐसा काम करने में जो आपके लिए काम ही नहीं है. दैट इज व्हाट इज, आई एम ट्राइंग टू बर्स्ट दिस मिथ एंड मिसगाइडेंस. कभी मत पढ़ना वाहियात चीजें. 50-60% प्रीलिम्स में भी आएगा, 50-60% मेंस भी आके आपका सिलेक्शन हो जाना है. सो ये है हिस्ट्री आपने कर ली. पॉलिटी इकोनॉमी की 10-10, 12-12 क्वेश्चन कर लो आप. किसी एक सेक्शन में एक्सेप्शनली वेल होता है, सबका एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा. सो डू नॉट बी मिसगाइडेड. नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, मुगल्स. ठीक है, तो डिक्लाइन बिकेम विजिबल फ्रॉम औरंगजेब ऑनवर्ड्स. दो एलिमेंट्स हैड ऑलरेडी crept in. ठीक है, द डिक्लाइन एलिमेंट हैज ऑलरेडी crept in. Why? Because when Aurangzeb inherited, that by the time Aurangzeb inherited Mughal Empire, it was in shatters. The economy was weak, all right, because of which there was not much money left for the investment in the towards army, etc. He was not able to pay good salaries. जागीरदारी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और औरंगजेब के बाद तो बुरी तरीके से जागीरदारी स्टार्ट हो गया और क्राइसिस स्टार्ट हो गया, मुगल्स डिक्लाइन हो गया. इसको कनेक्ट करो एंशियंट हिस्ट्री से. Go to Mahajanpada and Magadha. How Mahajanpada and Magadha, we have already read. Ancient, you two are new, but we have already understood how the economy as a basic structure supported the superstructure because of which major states grew up. Mahajanpada, agriculture fields, the introduction or the knowledge of iron tools. It became very clear, very easy to clear the forest, because of which there were more agriculture production, more taxes, more money in the coffers of the kingdom or the empire or the emperor. More money in the coffers, they could have more large army, huge army. They could pay to the officers. They could have satisfied human resource. ठीक है, employees, more better employees, more loyalty, better fight. They could also invest in other like good breeds of other things like elephants, etc. later on maybe. But यहाँ पे क्या हो रहा था during Mughals, now in the decline, economy was in shatters, trade was in decline. ठीक है, so trade was in decline because of internal wars. बहुत ज़्यादा. Aurangzeb was fighting wars at many sides. Rajputs, Jats, Sikhs, Marathas, and then there was a northwest से बहुत ज़्यादा infiltration भी start हो गया था, and that got culminated into invasion of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali later. ठीक है, जब उसके बाद जब नॉर्थ वेस्ट पूरा और ऊपर से अब हिंदू कुश से भी आ रहे हैं. पहले तो नॉर्थ वेस्ट ही था, हिंदू कुश से आ रहे हैं ऊपर से, और बिल्कुल नॉर्थ जब ये वाला पोर्शन है ना, पहले यहाँ से इन्वेजन हो रहे थे. अब क्या होगा, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल ये कहाँ था. अच्छा, नादिर शाह कहाँ से आया था? नादिर शाह कौन था, अहमद शाह कौन था? आर दे कनेक्टेड?
मुझे बताओ नादिर शाह कौन था? कौन नादिर शाह से था अहमद शाह का? हाँ, नादिर शाह कहाँ से आया था? थोड़ा कनेक्ट करोगे ना तभी हिस्ट्री याद रहेगी, कभी भूलेगा नहीं। नादिर शाह वाज अ पर्शियन रूलर। पर्शिया उसने जब इंडिया को लूट के ले गया ना, उसने 3 साल तक टैक्स ही नहीं लिया अपने लोगों से, बोला मौज करो, इतना पैसा लेकर के आया हूँ मैं इंडिया से। हाँ, समरकंद, यस यस। नादिर शाह वाज फ्रॉम पर्शिया विद अ पर्शियन रूलर। अब्दाली वाज गवर्नर, ठीक है, ऑफ नादिर शाह। बट अहमद शाह अब्दाली फाउंडेड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में वो था, बट किसके इन्फ्लुएंस में? नादिर शाह के। तो अहमद शाह अब्दाली केम फ्रॉम अफगानिस्तान। अब तुम वापस जाओ, ये मेजर इन्वेजन था जो इंडिया को बर्बाद किया। अहमद नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन विच ईयर? ये कुछ कुछ देखो, कहते ना रटना नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ईयर याद रखना है। नादिर शाह इन्वेजन, अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन, डेथ ऑफ औरंगजेब, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ अकबर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देन मेजर मेजर इवेंट्स कुछ कुछ याद रखने हैं। फर्स्ट लार्ज इन्वेजन एशियन इंडिया में, हमने मेजर इन्वेजन किस सेंचुरी में पढ़े थे? विच ईयर इन एशियन इंडिया? एंड देन फर्स्ट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और कल्चरल अवेकनिंग हैपेंस इन 6th century. सेकंड कल्चरल अवेकनिंग हैपेंस इन डबल 12th 13th century, जब सिखिज्म, सूफिज्म, भक्तिज्म आया था। पहला आया था 5th 6th century, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तुम देखो किस, ऐसा लगता है कभी कभी सेट था सब कुछ। और जो ये 7 है ना इंडिया के लिए, बहुत ही खराब है। 1757 क्या हुआ था? प्लासी। 1857 रिवोल्ट, ठीक है। 1907 याद करो, मॉडर्न इंडिया। वेरी गुड। हाँ, स्प्लिट हुआ था, एंड उसकी वजह से बहुत टाइम तक बहुत बुरा हाल था। देयर वाज अ वैक्यूम, और ये वैक्यूम किसने फिल किया करके? किसने आया? हाँ, नहीं, देयर वाज आफ्टर 1907, बीच में आप 1907 से लेकर के 1915 तक पढ़ो, 1914 तक। कहने का मतलब एक वैक्यूम था, ठीक है। और 1915 में क्या हो रहा था? 1914-15 में क्या हो रहा था? गांधीयन फेज स्टार्ट होता है। उससे पहले थोड़ा सा होम रूल मूवमेंट वगैरह था, थियोसॉफिकल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद गांधी 997 के बाद जब गांधी जी आए इंडिया में, तब वापस एक नया वेव आया फ्रीडम स्ट्रगल में, मास मूवमेंट का। तो ये 777 ना बहुत ही खराब है इंडिया के लिए। 2007 में क्या हुआ था? हाँ, देख लो ना, देख लो। 1947 अच्छा था, लेकिन बहुत खराब था। 1947 बहुत खराब ईयर था इंडिया के लिए, बहुत खराब था। गांधी जी वाज इन दुख, बहुत दुख था उनको। 1947 is not a year to rejoice. It was a year of sorrow. Oh, and Jinnah called वो डे क्या बोलते हैं? हाँ, लाइक लार्ज स्केल मसाकर था। नादिर शाह में शाह क्या मारेंगे, आपस में लोग एक दूसरे को मार डाले। I won't call 1947 a rejoicing year. I won't. So 777 जहर है इंडिया के लिए, ठीक है। सो लाइक ऐसे थोड़े से ऐसे कुछ फैक्चुअल इसमें क्या है, बट इफ यू रीड हिस्ट्री, कनेक्ट थिंग्स टुगेदर, देन यू विल अंडरस्टैंड। हाँ, फर्स्ट इन्वेजन्स क्या कौन से थे? कुशानास, साकास, कौन सी सेंचुरी में हो रहे थे ये सब? नहीं, हाँ, ठीक है। अच्छा, मौर्य, डेथ ऑफ अशोका, 323 ईयर याद है? सिग्निफिकेंस याद है 323 का? हाँ, याद रखो, 323 इज इम्पोर्टेंट ईयर, याद रखो। और उसके बाद और देखो कुछ कुछ टाइमलाइन है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम
हड़प्पन्स का याद रखने की जरूरत है। देन आपको याद करना है महाजनपदास का, राइज ऑफ मगधास का। फिर आपको अशोका का याद रखना है, हिज असेंडिंग द थ्रोन एंड डेथ, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके नीचे आ जाओ, अशोका के बाद आ जाओ गुप्ता में, चंद्रगुप्त मौर्य, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, याद रखो। उसके बाद इसके बीच में आप देखो कुछ इन्वेजन्स हो रहे हैं, इन्वेडर्स का नाम याद रखो। 323 बीसी का नहीं याद है, 326 का याद नहीं है, 326 बीसी क्या क्या हुआ था? अलेक्जेंडर ग्रेट भूल गए? याद रखो ना, अलेक्जेंडर, ये बहुत, अलेक्जेंडर, ग्रीक इन्वेजन याद रखो, पर्शियन इन्वेजन याद रखो, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, फिर उसके बाद आप उसके बाद गुप्ता हर्षा पीरियड इंपॉर्टेंट है, याद रखो। राइज ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म याद रखो, टाइमलाइन याद रखो। 5th-6th सेंचुरी बीसी में राइज ऑफ, इसको सोशल रिलीजियस अवेकनिंग बोल सकते हैं फर्स्ट, ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म, ठीक। उसके बाद अब क्या हो रहा है, 12th सेंचुरी जैनिज्म, सूफिज्म एंड भक्ति, ठीक है, अल्वर्स नायनार्स। तो आपको ये कनेक्ट करना है हिस्ट्री। आप जो अच्छे स्टूडेंट्स का देखोगे ना, तो वो ये सिनॉप्सिस बना के रखते हैं, वो कनेक्शंस। आंसर कभी भी आपके नोट्स और बुक से नहीं आएगा, लेकिन जो ये इंटरलिंक्सेस बना के रखोगे, जब आप अपना आंसर लिखोगे ना, बहुत ब्यूटीफुल आंसर बन के आएगा। कोई मॉडल आंसर नहीं बना के आपको सिखा सकेगा, कहीं का मॉडल आंसर, कहीं का अप्रोच पेपर, कहीं आपको नहीं सिखा पाएगा। जो आप एनसीईआरटी से पढ़ के खुद, और जो भी मैं कंटेंट बताती हूँ क्लास में, फैक्ट्स, आई डू नॉट टेल एनीथिंग आउटसाइड एनसीईआरटी। इफ यू हैव नोटिस्ड, मैं कुछ बताती हूँ बट फिर भी कितनी चीज बता देती हूँ क्लास में, यही शुद्ध बता रही हूँ। ये कहाँ से आया? इंटरलिंकेजेस से आया। पढ़ोगे, एक्टिव रीडिंग करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, उससे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, दैट गेट्स ट्रांसलेटेड इन योर आंसर। फ्लेयर, नेचुरल फ्लेयर बन के आता है। फिर उसके बाद यहाँ वहां थोड़ा पढ़ते हो, थोड़ा समझते हो, फिर आपका सिंथेसिस हो जाता है ना। सो राइट हर्षा। एंड देन आप मिडवल इंडिया में जब आते हो, मिडवल इंडिया में नॉर्थ इंडिया पहुंच गए। नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट स्ट्रगल्स, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इंपॉर्टेंट, इसका टाइमलाइन आपको याद रखना है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का। उसके बाद आ जाओ विजयनगर किंगडम एंड बहमनी किंगडम का याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अराइवल ऑफ पोर्चुगीज, ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इनके टाइमलाइन याद होने चाहिए। उसके बाद अराइवल ऑफ पोर्चुगीज, उसके बाद अब आ जाओ मुगल्स में, ठीक है। मुगल्स में औरंगजेब, ये देखो एक रस्सी होती है ना, जिसमें बहुत सारे नॉट्स लगे होते हैं, कोई एक ऐसा नॉट होता है जिसके खुलते ही पूरी रस्सी खुल जाती है। कुछ नॉट्स हैं हर सब्जेक्ट में, ऑलराइट, इन द हिस्ट्री पर्टिकुलरली, इफ यू नो दोज नॉट्स एंड यू कैन ओपन इट, एंटायर रोप गेट्स अनटैंगल्ड। हिस्ट्री में ये कुछ नॉट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। ऐसे बल्कि ऐसे रस्सी बनाओ अपनी कॉपी में, रिवीजन के टाइम पेज 2 में कर लेना, कोई बात नहीं, नॉट्स बनाओ और सोचो ये तुम्हारी नॉट्स हैं, ये तुम्हारा अभी का लेवल है, तुमको यहाँ पहुंचना है, ठीक है। ये नॉट्स अपने अपने लिख डालो, ये तुम्हारे अलग हो सकते हैं, योर्स कैन बी डिफरेंट, योर्स कैन बी डिफरेंट, योर्स कैन बी डिफरेंट। वी हैव टू रिमेंबर स्टोरी, एंड फॉर every one of us, that story has certain notes which we are not able to remember, digest. So for that, you write it here and then make it in a clean rope, and that clean rope becomes a pen for you, that you write a beautiful answer and you get selected. DM, IPS, SP, है ना, रेवेन्यू ऑफिसर्स, फॉरेन सर्विसेज में, जहां जहां जाना है आपको, ठीक है। दैट पेन विल बिकम द फॉर्च्यून मेकर फॉर यू। तो यहाँ से भविष्य ऐसे ही नहीं बनता है, भविष्य को बनाना पड़ता है। यू हैव टू डू लॉट ऑफ वॉर्स, लॉट ऑफ बैटल्स, देन यू हैव टू मेक योर ओन वेपन। थ्रू दैट वेपन यू राइट अ ब्यूटीफुल आंसर एंड यू बिकम द एम्परर, द किंग, व्हाटएवर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। ऑलराइट, कहाँ बताते बताते हैं भटक जाते हैं, जो कि जरूरी भी है। जो टीचर भटक न जाए पढ़ाते पढ़ाते, समझ लो बस फैक्चुअली रट के आया है, बस फैक्ट बता रहे हैं आपको, पढ़ने मजा नहीं आता। हिस्ट्री में, हिस्ट्री को एंजॉय करो लाइक अ स्टोरी, लव हिस्ट्री। जब, लेकिन लव, प्यार ऐसे नहीं होता है, चाहे इंसान से चाहे समाज से, उसके पीछे एक
बैकग्राउंड होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। प्यार हर इंसान से तो नहीं होता ना, किसी को किसी की समझ अच्छी लगती है, किसी को किसी की पर्सनालिटी अच्छी लगती है, बट उसमें वो एसेंस होना तो चाहिए ना, वो एसेंस होना तो चाहिए। बिना एसेंस के नहीं, जो अब कोई अच्छा समझाने के लिए कोई चीज नहीं है, प्यार कैसे होगा सब्जेक्ट से? मेरे साथ तो ऐसे हुआ, जो सब्जेक्ट किसी ने अच्छे से पढ़ा दिया उससे प्यार हो गया। पहले इकोनॉमी भी अच्छा लगता था, आई गॉट अ वेरी गुड टीचर, एंड हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हमारे सर विकास सर. So yes, you have to have somebody who can make you fall in love with things. You do not fall in love. So, mediator, अगुआ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका शादी ब्याह में, प्यार में. क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, जो मीडिएट करता है मैच में? करनी, हाँ वो तो हो गया. एक और बोलते हैं उसको ना, कुछ बोलते हैं, वो एरो लिखा रहता है. हाँ, क्यूपिड, प्लेइंग द क्यूपिड. You need a cupid. And who is your cupid in UPSC journey? Your faculties who make you fall in love with the subject. ठीक है? So yes, तो cupid हो अगर आपको तो प्यार हो जाता है. ठीक है? इंसानों में भी होता है. Somebody plays cupid for you, you get attracted. Lots of time. मेरे तो 2-3 फ्रेंड्स ने शादी कर ली आपस में. हमने मजाक में बोलते अरे तुम सही लग रहा हो यार, कितना सही है तुम लोग, you jealous so well. तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, पसंद 1 साल बाद शादी कर रहे हैं दोनों. Because of that particular, we were traveling to one of marriage function to my friend in Western UP. Last year की बात है, when I was working in previous institute. So बस में याद है मुझे, 2 people were there. हमने ऐसे ही मजाक बोल दिया, अरे पता 1 साल बाद शादी कर रहे हैं दोनों. There was no story at all. So it happens that you need a cupid, you need a mediator. अगुआ गाँव में अगुआ चाहे तो किसी की शादी किसी से भी करवा दे, किसी की शादी भी किसी करवा दे. और वही बात अगर थर्ड पर्सन कोई कुछ बोलता है, जैसे मान लो वी आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग समथिंग अबाउट मी, यू आर टॉकिंग समथिंग अबाउट यू, एंड वी नो यार हम बात कर रहे हैं फॉर समथिंग, कुछ अलायंस की बात कर रहे हैं, वी विल बी वेरी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर्स क्लेम्स. बट वही आके ही गोज टू यू एंड सर सब वो ऐसी एंड ही गोज टू यू एंड मी एंड नहीं यार शी इज दैट, यू टेंड टू बिलीव इट. दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. तो अगुआ, बिचौलिया, क्यूपिड कुछ भी करवा सकता है. इस तरीके से मैं बोलती हूँ, फैकल्टी अगर अच्छे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा. पता चला इकोनॉमी पढ़ना शुरू किया था, यू हेटेड इकोनॉमी, 2 महीने बाद पता चला इकोनॉमी फेवरेट सब्जेक्ट है आपका. दिस हैपेंस. देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, ग्रेजुएशन में है बच्चा, इन प्रीवियस इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ही इज फ्रॉम साउथ तेलंगाना से है. इतना अच्छा स्टूडेंट है वो, इतना अच्छा स्टूडेंट दैट he listens to the class carefully. He always came to the class. He did not miss a single class, and he was so good at history. He was so good at the end of this, classes. He said, "Ma'am, I want to take history option." मैंने कहा देखो वो मुझे नहीं पता, History optional, psychology optional, I'm not very sure. देख लो, but there are a lot of students last year also they faced very good marks in optional social history. So I don't know. Then. Yeah, so he said, "Ma'am, I want to read history and I want to write some book on history. Maybe I will keep on pursuing something in history, and I'll make this bring the history of India, ancient, medieval, modern, to all together in different clear perspective. I'll provide it." And he has a long, and he keeps connecting with me, and he'll have some story, he'll share, he'll discuss. So हो जाता है ऐसा, So yes, middle. ठीक है, कहाँ रखते हैं अशोका. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स ओके. डिक्लाइन मुगल्स 75th ईयर हम देख रहे थे. ठीक है, डिक्लाइन की बात कर रहे थे हम. ठीक है, तो डिक्लाइन में क्विकली लेट्स फिनिश दिस. ओके, फर्स्ट थिंग, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैड करप्टेड इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट. एट अर्लियर इट वाज नॉट, later it started happening. हाँ क्या? I'll tell you. पहले nobles, this give rise to growth of rebellious states and successful states. That's what I'm going to clarify to you all. So nobles, पहले nobles क्या थे? Nobles power struggle में थे in Mughal court. They were there for the power struggle. All right? Power struggle मतलब ठीक है, they wanted to exercise more power, they wanted to control the emperor or the king, and later on they became the kingmakers, but they never wanted to be the king themselves. ठीक है, it was there in Mughal administration or Mughal court in the later Mughals.
बट लेटर ऑन क्या हुआ, जो नोबल्स थे या जो वजीर थे या जो गवर्नर्स थे, नाउ लेटर, ठीक है, they were quite able and they got frustrated with the Mughal emperor. Later Mughals, they were weak, they were more interested into luxurious life, ठीक है, मस्त रहते थे खा पी करके, तो they got frustrated. बोलते हैं कि लेटर ऑन अगर ये जो, अच्छा, हैदराबाद, who founded हैदराबाद, बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट का, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर एन आवाज, गुजरात 1736 also is important, yes. हॉकिन खान कहाँ से आ गया, हॉकिन खान किसने, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, नया वर्ड मिला, हॉकिन खान, वाह क्या बात है, हॉकिन से, बट हॉकिन खान तो नहीं था, हॉकिन खान, ठीक है. स्नेहा, am I audible now? I hope recording session कहाँ मिलेगा. Kamini, you can get the recorded. Every session is recorded. All the previous sessions also you can have access of. You can talk to Rakhi ma'am and you can get to know where you'll get the recorded sessions. ठीक है. With the real geographical limitations, Gujarat split. सूरज में कौन है ये? कितने अच्छे से नाम आ रहे हैं, सोचो. हॉकिंग खान कौन था? हॉकिंग खान, वाह क्या बात है. ऐसी किताब लिखना किसने, तुम हिस्ट्री पे सबको खान बना देना, कितना सही रहेगा, मजा आएगा. मोहम्मद शाह आलमगीर 2, ठीक है. मैं पहले ना न्यूज़पेपर सेशंस लेती थी ऑनलाइन लाइव, इतना मजा आता था, क्या क्या कमेंट्स आते थे कसम से. यूज्ड टू बी सो फन सेशंस, मतलब एक ऐसे फनी कमेंट्स आते थे पूरे इंडिया से. और उसके बाद आई हैड टेलीग्राम चैनल, देना पड़ता था. आफ्टर द सेशन 100 ऐड हो रहे हैं, 100 ऐड होते थे ऐसे, और कुछ भी कमेंट आते थे. आई यूज्ड टू रियली लाफ इन द सेशंस, मतलब इट वाज फनी. सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर, यू नो, दे आर ऑक्सीजन टू मी इन द क्लासेस. ऑफलाइन बच्चे तो सीरियस बातें चलती है, अभी तक हंसी नहीं थी, मतलब स्क्रीन पे देखते हंसी आ जाती है. ओके, आई टेक लाइव सेशन, अभी पूरा यूट्यूब पे फ्री कर दूंगी सारे सेशन, बच्चे सब ज्वाइन करो ऑल ओवर इंडिया, मजा आएगा कितना बात करने में. मुझे तो इतना मजा था ऑनलाइन सेशंस लेने में, सारे बच्चे फ्री देंगे, मैं तो कहता सब कुछ फ्री पढ़ा दूं, सब सारे बच्चे ऑनलाइन इंडिया सब बैठ के पढ़े सारी क्लासेस, ठीक है. ओके, हाँ, मतलब फिर फीस देने का क्या फायदा होगा ना, कुछ चीजें फीस वालों को भी मिलेंगी कुछ चीजें नहीं देंगी. ओपन सेशन लगता है, फ्री रख के रखो, बच्चा एटलीस्ट थोड़ा समझ तो ले, बट यू नो, और भी लोग को थोड़ा सा मिल जाए. तो आई रिक्वेस्टेड सर कि लेट्स मेक दिस सेशन फ्री फॉर ऑल, मतलब. एंड आई थिंक काफी अच्छा पावरफुल सेशन हो जाता है. तो अगर जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिल जाता है, बट ऑब्वियसली देयर आर मोर बेनिफिट्स बीइंग one-to-one student, and there are other discussions, daily assignments, daily targets complete करना बहुत necessary है. यूपीएससी में कंसिस्टेंसी एंड डेली शेड्यूल होना और उसको कंप्लीट करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. स्टूडेंट्स यहाँ वो सिलेक्ट नहीं होते हैं जो बहुत 15-15 घंटा पढ़ते हैं या बहुत जिनको नॉलेज होती है कुछ सब्जेक्ट में, यहाँ वहाँ बिट्स एंड पीसेस में. स्टूडेंट्स वो सिलेक्ट होते हैं जो कंसिस्टेंटली शेड्यूल फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंटली डिलीवर करते हैं, कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं रूटीन को. बहुत सारे स्टूडेंट्स में मुझे पता है, इफ आई आस्क देम ना अबाउट समथिंग, दे विल रीड एंड दे विल रिफ्लेक्ट रियली वेल. बहुत अच्छा, उनको ग्रिप, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत शार्प होती है, बहुत अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग से डेवलप करते हैं चीजें, बट दे आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. व्हाई? देयर इज अ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, देयर इज लैक ऑफ रेगुलर, यू नो, study regime and everything that is needed. All right, so yes, so what had crept in? Now the new element, now the nobles, they are becoming the power contenders as a ruler. पहले ऐसा नहीं था. They were interested in power politics, they were the facilitator who will become king, emperor who will not, but earlier they were not contending for the post. अब post भी चाहिए इनको because of certain justified reasons, not unjustified reasons. तो सबसे पहले who broke up? हैदराबाद. कौन थे? हैदराबाद को कौन फाउंड किया? निजाम का पूरा नाम तो बताओ. निजामुल मुल्क, ऐसे पूरा याद रखो, ठीक है. निजाम, कई वो अलग बात है, कई के नाम ले लेते तो कंफ्यूज हो जाता था. निजाम, एक नाम याद रखो, काम चल जाएगा, ठीक है. निजामुल मुल्क.
निजामुल मुल्क वाज एन एबल नोबल, ठीक है। वो उस टाइम क्या कर रहे थे भाई, ठीक है, डेक्कन डेक्कन उनको मिला हुआ था अपना, देख रहे थे, फिर आते थे। क्या होता था कि उस टाइम कौन था, जब ही ब्रोक अप फ्रॉम द मुगल एम्परर, मुगल एम्पायर, हु वाज द मुगल एम्परर? फारूक शेयर। कौन था? अब देखो, औरंगजेब के बाद कौन आता है? 4-5, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह क्यों यार? मोहम्मद शाह लाइट फ्लैटरी, मोहम्मद शाह मस्त रहता था, मोहम्मद शाह। ये चीज याद रखो, फारूक शेयर बाद में आता है। मोहम्मद शाह का कौन था? फारूक शेयर नेफ्यू था, ठीक है। कुछ चीज देखो, औरंगजेब, उसके बाद 4-5-6 टिल दी सक्सेस स्टेट, वो आप बीच में याद रखो। औरंगजेब के बाद बीच में 5-6 रूलर्स आए, उनका याद रखो, ईयर याद रखो एक्सेशन का। मोहम्मद शाह का ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ दी अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अब फारूक शेयर का क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ही इशूड अ फरमान, फरमान अंग्रेजों को दिया था, उस फरमान से उन्होंने इंपॉर्टेंट रीजन्स मिल गए थे। तो कुछ कुछ टाइमलाइन आपको याद रखना है, ठीक है। औरंगजेब के बाद वाला टिल देन बहादुर शाह, देन उसके बाद आप आ जाओ फारूक शेयर तक, ये याद रखना। बीच में 2 माइनर आए थे, जहेंद्र शाह, हाँ फारूक शेयर, तो ये थोड़ा याद रखो। और बीच और याद रखो कि किंग मेकर्स कौन थे, उसको याद नहीं रखना है। माइनर्स को नहीं याद, 2 आए थे बीच में माइनर्स, उनको हटा दिया गया था, ठीक है। तो किंग मेकर जिसको बोलते हैं, सैयद ब्रदर्स, ठीक है, उनको याद रखो थोड़ा सा, कब आए। इसलिए क्योंकि दे आर इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द हिस्ट्री अ लॉट, तो थोड़ा सा याद रखो ये, ओके, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इससे क्या आ रहे हैं? सक्सेसर स्टेट्स एंड सक्सेसर स्टेट। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर स्टेट्स एंड रिबेलियस स्टेट्स? Give me the names of success states and rebellious state, and what is the difference? ठीक है, करेक्ट। ठीक है, हाँ रोयलस, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? मतलब सक्सेस स्टेट्स वर एक्चुअली, देखो, ठीक है, ठीक है। पॉइंट देखो, मेन मेन बात एकदम बिल्कुल बुलजाई, बिल्कुल हमें ना हिट करना है बुलजाई में। मछली की आंख देखना है, मछली की पूंछ, मछली की स्किन, मछली का फिन से वो सब नहीं देखना, मछली की आंख देखनी है। मछली की आंख क्या है? ये दोनों ही इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। और सक्सेस स्टेट क्या करते थे, टाइम टाइम पे ट्रिब्यूट्स देते थे मुगल एम्परर को, ठीक है। जबकि रिबेलियस स्टेट को ऐसा कुछ नहीं था, उनको कुछ ना कोई ट्रिब्यूट देते थे, उनको कोई मतलब था, नीदर दे वर रूलिंग इन द नेम ऑफ, टू एन एक्सटेंट द सक्सेस स्टेट्स वर रूलिंग इन द नेम ऑफ मुगल किंग्स। दो अपने देवर मिंटिंग देयर कॉइन्स, देवर उनके अपने फ्लैग्स थे, सब कुछ था, अपना रूलर कहे जाते थे। बट देखो, या तो उनको नवाब कहते हैं, है ना, या तो उनको निजाम कहते हैं, नवाब ऑफ बंगाल एक्सेट्रा, निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। उनको एम्पर नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब दे हैव रिकॉग्नाइज, दे स्टिल रिकॉग्नाइज द एम्पर एज देयर फाइनल अथॉरिटी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को अभी भी फॉलो कर रहे थे, दे वर रूलिंग इन द नेम ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, दो दे वर हैविंग देयर ओन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? How we call them independence? They were having their own coins, ठीक है, they were having their own flags, they were having their own army and administration. They were looking up to, they were restructuring, rechanging, introducing new elements as per their own choice and interest, not controlled by the central authority, ठीक है। So but rebellious state में completely उन्होंने बोला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। And yes, these Nawab Nizam, they were earlier the Subedars or the क्या कहते हैं, governors या वजीर्स थे in the Mughal emperor. तो ये new element है which was important and success states and rebellion state. अब देखो, यही successor state, अच्छा अब अंग्रेज आ गए, ठीक है। अब यूरोपियन साल हम समझ लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो कि यूपीएससी में पूछा नहीं जाएगा, बट समझो अगर हिस्ट्री समझ में आएगी। 1559, 1600 and then 1601, 1600, 1608, then is
Yes, 1608, 1615 एक, या 1662, हाँ 1662, 15, 1615 एंड देन 1652। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टर्म्स में बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ब्रिटेन में क्या हो रहा था, जब इनको समझ में आ गया वहां के लोगों को कि इंडिया में बहुत ह्यूज वेल्थ है एंड बाय कैप्चरिंग इंडियाज ट्रेड वी कैन बिकम वेल्थी, तो क्या किया, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, एग्जैक्ट वर्ड बोलेंगे ना, हाँ ठीक है, मर्चेंट एडवेंचरर्स थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की, ठीक है। और ब्रिटिश जो वहां की एम्परर थी, और राइट नाम पता होना चाहिए, क्वीन एलिजाबेथ विक्टोरिया मत याद, क्वीन एलिजाबेथ, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, एलिजाबेथ 2, एलिजाबेथ 3, एलिजाबेथ 4, पता नहीं क्या आया था। क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम थी, क्वीन एलिजाबेथ से उनको मिल गया, ठीक है, ऑर्डर कि चलो ठीक है आप जाओ, यू विल हैव मोनोपोली ओवर द ट्रेड, ठीक। देन दे केम, दे वेंट एंड दे फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोलिस्टिक ट्रेड था ओवर द इंडियन ट्रेड एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में। तो एक तो 60 कब हुआ, 1559 में एसोसिएशन बनी कंपनी की। देन 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने बोला ठीक है, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दे दिया ओवर द ट्रेड टू ट्रेड विद ईस्ट, इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया नहीं यूज करना, ट्रेड विद ईस्ट। तो इधर से इधर जितना भी होगा सब ईस्ट ही तो है ना फॉर देम, इन देयर रेफरेंस एनीथिंग फ्रॉम हियर टू हियर इज ईस्ट, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ इन 1600 गेव रॉयल चार्टर दिया, ठीक है जाइए और आप ट्रेड करिए और मोनोपोली रखिए ट्रेड पे टुवर्ड्स द ईस्ट। उसके बाद 1608 इंपॉर्टेंट क्यों है, 1608, चलो ये क्वेश्चन यही क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री नहीं बोलेंगे हम, टू बी प्रिसाइज इट वाज द ट्रेडिंग पोस्ट, इट वाज द ट्रेडिंग पोस्ट, नॉट इन पर्टिकुलर फैक्ट्री। द फर्स्ट फैक्ट्री वाज एट मसूलीपट्टनम। तो सूरत अगर क्वेश्चन आए अकॉर्डिंगली आपको टिक मार्क करना है। तो फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट अगर पूछे फर्स्ट फैक्ट्री, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है सूरत और मसूलीपट्टनम दोनों, तो आप आंसर मारोगे मसूलीपट्टनम पे। अगर सिर्फ सूरत है या मसूलीपट्टनम तो आंसर मारोगे कोई भी। अगर ये क्वेश्चन अगर मान लो दोनों दिए ऑप्शन में तो फर्स्ट फैक्ट्री विल बी मसूलीपट्टनम नॉट सूरत। सूरत वाज द फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट। ट्रेडिंग मतलब फैक्ट्री क्या थी, फैक्ट्री क्या थी, व्हाट वाज फैक्ट्री, एनसीईआरटी दिया हुआ है, स्टोर हाउस, वेयर हाउस, बस, हाँ हाँ, अच्छा, was it a place of manufacturing as well? हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही नहीं रहे थे इंडिया में लोग, मैन्युफैक्चर गुड्स लाते थे, रखते थे और डंप करते थे मार्केट में, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। फैक्ट्री वाज अ प्लेस विच वाज वेयर हाउस, देयर स्टोर हाउस था, और जो ऑफिशियल थे इनके यहाँ उनके लिए रहने की भी जगह थी। दिस वाज अ फैक्ट्री। ट्रेडिंग पोस्ट मतलब रहने की जगह, आए सामान रखा बेचा निकल लिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग पोस्ट है भी। फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड एज वेल, फोर्टिफाइड, ठीक है। तो फर्स्ट फोर्ट कहाँ था, फर्स्ट फोर्ट कहाँ था इनका, मद्रास में, क्या बोलते हैं उसको, सेंट जॉर्ज फोर्ट, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा फैक्ट्री कहाँ था, फोर्ट विलियम, ठीक है। तो ये याद रखो। तो मान लो फैक्ट अगर पूछना चाहेगा तो यूपीएससी पूछ सकता है यहाँ से, वंस एंड फॉर ऑल क्लियर रहेगा तो इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट ऑल्सो हिस्ट्री में, ऑलराइट, ठीक है। तो 1608 में इनकी पहली फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट आई। अच्छा 1615 में क्या हुआ, 1615 1600, अच्छा 1600 एक और इम्पोर्टेंट है, 1608 में, हाँ ठीक है, 1608 में फैक्ट्री खोली और देन सूरत वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में कैप्टन हॉकिंस को भेजा। कहाँ, 1600 इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जहांगीर पोर्ट में जाकर के कैप्टन हॉकिंस ने मोर कंसेशंस की डिमांड की, प्लीज गिव अस मोर कंसेशंस। जहांगीर ने बोला ठीक है, ट्रेड तो करने आए हो, बेनिफिट है, ट्रेड से तो हमेशा बेनिफिट होगा, आप सामान लाओगे बेचोगे, फिर हमको बुलियंस भी मिलेंगे। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, इफ यू रिमेंबर द यूरोपियंस दे केम, दे गिव देयर, जहां पे ये जैसे अब पहले, अच्छा एक चीज और था, पहले यहाँ से रॉ जो ले जा रहे थे मैन्युफैक्चर वहां पे हो रहा था, ठीक है, लेकिन रॉ गुड्स तो यहीं से ले जा रहे थे ना, तो रॉ गुड्स को खरीदने के लिए क्या करते थे, काफी बुलियंस देते थे, तो इट वाज वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड फॉर इंडिया। सो बाद में क्या किया, इंडिया को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया ग्रेजुअली, एंड रॉ
जो गुड्स मिलते थे यहीं का पैसा यहीं से लोगों से लेके यहीं से देते थे, तो ब्रेन ऑफेंस स्टार्ट हो गया था वहीं से, ठीक है। So 1608 is important because जहांगीर कोर्ट में कैप्टन हॉकिंस went and asked for more concessions. Now 1615 में अगेन सर थॉमस रो अब जाते हैं, हॉकिंस खान के बाद अब रो खान जाएंगे, ठीक है। तो रो थॉमस रो जाएंगे एंड मुगल कोर्ट एंड रो सक्सीड इन गेटिंग इंपीरियल फरमान, पहली बार इंपीरियल फरमान पहली बार मिला था, ठीक है। ट्रेड एंड देन 1662 में पोर्चुगीज, अब पोर्चुगीज गेव आइलैंड, अब 1662 की इंपॉर्टेंट है। 1662 अंग्रेजों के लिए बात करें हम, दिस ईयर्स हम जो बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, 1662 1652 1662 है ना, हाँ 1662, हाँ नहीं ट्रीटी, हाँ ट्रीटी नहीं हुई थी, ट्रीटी का पार्ट नहीं था, हाँ सोचो, मतलब जो इनका नहीं है वो उठा दहेज दे रहा है, मतलब मतलब कि जो मेरा है नहीं वही अपनी बेटी को दहेज दे दिया, ले जाइए हमारे प्रिंसेस को, और बॉम्बे कैसे आपके हाथ, उस टाइम तो बॉम्बे इनके हाथ में भी नहीं था, दहेज में दे दिया, ठीक है। तो 1662 में प्रिंसेस ऑफ डचेस उनकी शादी हुई राजा जी से और राजा जी को बॉम्बे मिल गया। और 1662 में क्या हुआ था कि 1662 ये तो ले पहले लिया, तो 1662 में पोर्चुगीज ने अपनी दे दी, किंग चार्ल्स II नाम था जिसको अपनी बेटी दी थी, प्रिंसेस दी थी, और उसके बाद उन्होंने डाउरी दे दिया। अब ये बॉम्बे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम बिकॉज बॉम्बे वाज एन इंपॉर्टेंट पोस्ट नेशनल हार्बर, सब कुछ था, दे वर एट एडवांस्ड और द एडवांटेजेस पोजीशन टू डू द ट्रेड, ठीक है, इन इंडिया। तो दैट्स हाउ नाउ पोर्चुगीज, और धीरे धीरे पोर्चुगीज का सिग्निफिकेंस भी कम हो रहा था, पावर कम हो रही थी, इंग्लिश वर getting better stronghold over the India. So this is important timeline for English East India Company that will have an large scale bearing on history of India that is going to come after this. अब तुम लोगों को मैंने बताया कि सक्सेसर स्टेट्स और रिबेलियस स्टेट के बारे में, यहाँ अंग्रेज आ चुके हैं, यहाँ पे सक्सेसर स्टेट्स और रिबेलियस स्टेट्स हैं, वहां पे नादिर शाह का इन्वेजन हो चुका है, बुरी तरीके से मारा पीटा, ठीक है, और वो बाद में सबसे अच्छा खासा मारपीट के किसने भगाया था, औरंगजेब ने। चाहते तो वहां से भी कंट्रोल कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, उसके बाद धीरे डिक्लाइन हो गया। तो अब क्या होगा, अंग्रेज आ चुके हैं, ठीक है, इंग्लिश इज देयर, ब्रिटिशर्स आर देयर, नाउ व्हाट चैलेंज दे विल फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट चैलेंज दे विल फेस, दे विल फेस इंग्लिश, दे विल फेस पोर्चुगीज धीरे उनका अपना अलग है, कैसे उन लोगों का इक्वेशन, पावर इक्वेशन चेंज हुआ। लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ पोर्चुगीज वाज दैट दे गॉट बॉम्बे फ्रॉम पोर्चुगीज इन द डाउरी, एंड उसके बाद राजा जी किंग चार्ल्स II ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला हम आपको इतने पैसे एनुअल देंगे, आप हमको बॉम्बे दे दो। डाउरी में तो राजा को मिला था ना, राजा की थोड़ी कंपनी थी, कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है, कि भाई उनको रॉयल फरमान मिल गया, रॉयल चार्टर मिल गया, ये मैं एम्प्रेस हूँ एलिजाबेथ, ठीक है, तुम लोग मर्चेंट्स हो, मान लो सब नहीं, तुम 2-3 लोग मर्चेंट एडवेंचरर्स हो, भाई तुम लोग हमें जाएंगे, हमने सुना है कि इंडिया में काफी सारी वेल्थ है, हमें जाएंगे, पोर्चुगीज खूब पैसे कमा रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं, चलो हम लोग चलते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, तुम लोगों को बिजनेस आइडिया है, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, तुम लोग आइडिया हम बनेंगे, हम बिजनेस करेंगे, ठीक है, तुम लोग आइडिया, चलो मारपीट करते हैं और वहां से बढ़िया अपना पैसे से कमाते हैं। सो यू गाइस केम अलोंग, you made a group together and then you formed a company in 1559, and then अब मैं empress हूँ ना, you're under me final authority, so you'll have to take permission from me. So Empress Elizabeth, she gave royal charter, go and have a monopolistic trade with east, to east. क्यों monopolistic trade, ये important क्यों था, ये सब नहीं आ जाएंगे, ये सब भी आ जाएंगे, तो individual merchants आ जाएंगे for trade, तो competition बढ़ जाएगा ना, so you'll have to have the monopoly over the trade with east. That is why royal charter was needed and they got from Elizabeth. क्यों दिया एलिजाबेथ ने, ठीक है, यहाँ ये लोग कंपनी कमाएंगे तो इंग्लैंड भेजेंगे ना वापस पैसा, एंड देन अब जो है किंग चार्ल्स II थे, उनको बॉम्बे मिल गया दहेज में, उन्होंने कहा लो तुम लोग ले लो और अच्छा ट्रेड करो, मुझे पैसे दो और दो, ठीक है, तो फायदा हो रहा है। सो दैट इज व्हाट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, विच लेटर ऑन धीरे धीरे 1813 वगैरह, देन धीरे धीरे 1858 में इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी, जुडिशियल लॉ, एवरीथिंग वाज चेंज्ड विद इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री। 1772 में कुछ होता है, 1772 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 में समथिंग हैपेंड इन 1772,
on the soils of India. That is why 1773 Regulating Act, Charter Act, Government of India Act, difference भी note करते जाना. There's a reason behind the name difference. पहले आता है Regulating Act, फिर आते हैं Charter Acts, फिर आते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वर्ड क्यों नहीं यूज हो रहा था? 1858 में पहली बार यूज होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ठीक है, और इन्हीं जो ये एक्ट्स आ रहे थे, दीज एक्ट्स वर बीइंग ब्रॉट बाय द इंग्लिश टू चेंज इन द स्ट्रक्चर और द फंक्शनिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ये लगा खूब अच्छा ट्रेड वेड करने लगे, फिर लगा यार, फिर अदर मर्चेंट्स को लगा कि हमें भी चाहिए भाई, तो धीरे धीरे इसी मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए देयर वर चेंजेस व्हिच वर ब्रॉट इन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आल्सो द पॉलिसीज एंड द लॉज व्हिच बीइंग ब्रॉट बाय द फ्रॉम कहां से, पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश से, और दैट वाज इन्फ्लुएंसिंग द इंडिया सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैब्रिक. यही सब आपको कनेक्ट करना है हिस्ट्री में. फिर माफ करिएगा भटक गए इधर उधर, आते हैं वापस सक्सेस स्टेट पे. तो इंग्लिश जब आएंगे तो दे वर हैविंग सम चैलेंजेस. वन, द पोर्चुगीज. सेकंड, फ्रेंच. ठीक है, लेटर थोड़ा फ्रेंच अभी थोड़ा बाद में आ रहे हैं, इसके बाद आ रहे हैं, सब एक साथ चल रहा है धीरे धीरे धीरे, वन आफ्टर अनदर और मे बी टुगेदर. देन दे वर हु दीज सक्सेस स्टेट्स एंड रिबेलियस स्टेट. द मोस्ट बोरिंग topic as a student in modern Indian history is success state and rebellious state and the fights, and then how, what happened, which treaty, which battle, which outcome, all these things. यही सब था, है ना? तो अब इन्हीं को मारेंगे, झगड़ाएंगे, लड़ाएंगे. ठीक है, ओके, ऑलराइट. 2:30 पे अभी आधा घंटा है, बिठाओ उनको. ठीक है, हाँ, ठीक है. सो they will fight with these Hyderabad, then Bengal important. अच्छा, और एक चीज नोट करो, फिर माफ करिएगा, माफ मत करिएगा, माफ करना ही पड़ेगा. आप लोग खुद भटकते जाओ मेरे साथ, भटको, मजा आएगा. एक चीज इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखो कि अगर आप ध्यान दो तो जब पोर्चुगीज आए, ठीक है, और इंग्लिश आए, ये पहले कहाँ घुसना शुरू किए धीरे धीरे? साउथ इंडिया में. विजयनगर एम्पायर वाज ऑन फॉल. ठीक है, मुगल इन्फ्लुएंस, Mughal Empire ka one of the other reason for decline is that they started expanding their territory to south as well, but they could not control South India. ठीक है, इसकी वजह से भी उनका वीक हो गया था. तो साउथ इंडिया में बहुत सारे proliferate हो गए रीजनल किंगडम्स एंड दे ओवरथ्रू, दे एंड देन इसीलिए आप देखो सूरत हो गया, ठीक है, सूरत हो गया गुजरात के आसपास. उसके बाद आप देखो डेक्कन जितने भी स्टेट्स हैं, फिर बंगाल में आ जाओ, यहाँ पे ये सब खाली पड़ा था, कोई था ही नहीं गाइड करने के लिए. इसीलिए ये जितने भी these European powers came, they first settled in these states. Also, other important regions were they were natural harbors. ठीक है, they were having important ports to trade with the other countries, इधर साउथ ईस्ट एशिया, इधर वापस अपना अफ्रीका वगैरह सोते हुए पूरा. So this is also factor, and this is all the points which you write in answers and you fetch marks. These are interlinkages. Books will never tell you these interlinkages. You read the same book, that is NCERT, and you will develop the interlinkages on your own. Nobody can help you develop these interlinkages. Yes, sometimes through this limited time which we have in our mentoring session, this is not full-fledged class, that I try to develop these interlinkages for you all. That's how it's done. ठीक है? All right. So पहले, ठीक है? So these fights will happen. One after another, English will defeat all of them and take up these important territories and they will rule. उसके बाद सबसे बंगाल की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, बंगाल. Why? Bengal at that time was the richest. Yeah, controlling this meant और 1757 और 1764 के बाद, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही कितने सारे मेजर चेंजेस आए थे, आप याद करो. दीवानी राइट्स मिल गया इनको. ठीक है, डुअल गवर्नमेंट चलो बाद में, लेकिन डुअल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, यही तो स्टार्ट हुआ. एंड जब बंगाल कंट्रोल कर लिया उसके बाद ही दे बिकम फ्री. उसके बाद इनको इतना वेल्थ क्यों फ्री हो गया? जो इंडिया से इनको वेल्थ मिलता था, उसी वेल्थ को ये वापस एक तो भेज देते थे, in form of home charges and other salary etc वगैरह जो भी था,
सो इंडिया से ही पैसे लेके इंडिया में ही ट्रेड कर रहे थे ये. तो नाउ worst decline happens in India in terms of economy and trade, etc. Why? Because India now is no more earning. It's only giving and being looted. It was not getting anything. Till now it was. But after the taking over the Bengal and Bengal administration and setting up various, forts here and there, after Battle of Buxar to be particular, starting with 1757, Britishers became superpowers as on the Indian subcontinent. फिर अब कोई there was no looking back. फिर उसके बाद फिर वापस इन्हीं सबको मैनेज करने के लिए दिस टेरिटरी, दिस ट्रेड, दिस मनी, द पीपल, जितना पॉलिटिकल सब्जुगेशन होगा लोगों का उतना ही कम रिबेलियंस होगा. तो दे ब्रॉट मेनी चेंज इन इकोनॉमी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन. इकोनॉमी, परमानेंट सेटलमेंट्स, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स टू fetch maximum revenue, and then administration to have police and judiciary in a way that will serve the interests of Britishers. बस फिर वही आप थ्रू आउट हिस्ट्री पढ़ोगे. उसके बाद फिर मॉडरेट्स को समझ में आ जाता है, अर्ली नेशनलिस्ट जो पढ़ के आते हैं यहाँ वहाँ से, रेनेसांस पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, दे अंडरस्टैंड, ओ माय गॉड, सो वी आर बीइंग लूटेड. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज Renaissance, there is nothing called as modernization in modern India. We are being looted, we are being impoverished. So let me tell this to entire Indians so they can come together in a fight, and the fight starts. सबसे पहला होम रूल लीग की बात करें, मेजर, ठीक है. उसके बाद आप आ जाते पहले मॉडरेट्स, देन एक्सट्रीमिस्ट, देन रिवोल्यूशनरीज, देन उसके बाद ऑल ओवर इंडिया स्ट्रगल हैपेंस दैट गेट्स कल्मिनेटेड इनटू सिविल डिसोबीडियंस एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड फाइनली इंडिपेंडेंस 1947. ठीक है. And then some acts here and there, some charters. 1857 War of Independence happened. Before that, there are many rebellions, civil rebellions and peasant and tribal rebellions. है ना? Before 1857, there is a civil and tribal rebellions, and then after 1857, there are two, kinds. तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा. तो ऐसे जब मॉडर्न, जैसे एंशिएंट मीडियम में जब तक पढ़ रहे थे, तो there was a chronology, one time then after another. But modern India mein there is no chronology. You have to, like, if you're reading civil rebellions and tribal rebellions, you cannot read. ठीक है, थोड़ा पढ़ते वक्त मे बी क्लास में बता दूँ this before 1857, this is before after 1857. But when I give you a schedule, I will give you civil rebellions and tribal rebellions, and then you have to club it before and after दोनों. But there is no proper very strict timeline in modern Indian history. That's why you have to read it all together and then connect and then understand different topics and different points. So this is what happens, and then further you have to read what are Charter Acts, what are the elements of it, what is Government of India Act 1919. Then further आप आ जाते हो 1909 पहला, फिर 1919, then उसके बाद अपना 1935 मेजर इंपॉर्टेंट, फिर 1947. तो इसमें क्या डिफरेंस थे, क्या कौन पार्टीज थी, फिर नारी नेशनलिस्ट मूवमेंट, कौन कौन से मूवमेंट थे, गांधी आते कौन कौन सा मूवमेंट. बस आपको भी फैक्ट्स याद करना है. बट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्टोरी क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, दिस आई हैव गिवन यू. मतलब एक क्लास में आपको मैंने मॉडर्न इंडिया पढ़ाने की कोशिश की. मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, जो कि 25 क्लास में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है. सो फैक्ट्स, टेकिंग फैक्ट्स from books is now your task, because this is not a foundation class. I won't be able to teach facts, information, topics in detail, but I have given you a glimpse, proper glimpse and overview of modern history. With this lens, you can now read again in phase 2 modern Indian history, and you can understand. That I have done with ancient, that I have done with medieval, that I have done with modern. So here we finished modern Indian history, okay, with whatever limited time we had. And I wanted to discuss the questions which I could not have discussed. And class is going to finish. मिल जाए आंसर्स फिर डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, आ जाओ, किसी भी दिन आ जाओ, आंसर डिस्कस कर लेते हैं. या तो फिर आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा शाम को, आज शाम को सारे आंसर मिल जाएंगे आपको, मॉडल आंसर मिल जाएंगे, पॉइंट्स देखो, और या तो 1-on-1 सेशंस के लिए आ जाओ मेरे साथ. ठीक है, ऑलराइट. सो ऑल द बेस्ट. I'll see you whenever you can. And you will get the model answers, the right options, right answers of MCQ. 50 questions है, 5 mains के हैं. ठीक है, we can meet again for group discussion, or I will for sure by the end of the day you will get the model answers. ठीक है, that I do discuss. By the way, आप लोग नए हो तो we do discuss in class only. Discuss करते हैं question by question. But I wanted कि एक बार modern history का glimpse मिल जाए ना, whatever have a grasp बन जाए तो पूरा topic पढ़ सकते हो आप. Alright, so 1-on-1 session के लिए आ जाओ आप लोग अपने आंसर के साथ. We can have a discussion. All the best. Bye bye.